Welcome to YouTube channel Abrar Electrical World. This is purely voluntary free education YouTube channel, no commercial activity. So we have uploaded at least 10 video lectures and 5-6 in classroom settings where I have explained everything, all the aspect starting from why system studies, what is transient steady stability, then what is the rotor angle, how the generator go out of synchronism, what is the acceleration, why deceleration of the alternator, what is the power swing, what is the power torque angle, what is the mechanical power, electrical power, what is equilibrium. Everything I have explained in the classroom setting. Also power swing detection and power swing blocking and out of step tripping, islanding, that I have explained in various lectures in the classroom. Now in this particular 2-3 lectures I am using the very important report on the power system disturbance and the power system transient stability, and it was prepared by a team of engineers and scientists in collaboration with the IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers USA, and it is very comprehensive report, and therefore I thought that I must mention this in my banner because I have taken the material from this report. So it is also moral duty to quote and to mention and to offer thanks to those team of engineers who have really prepared such a wonderful research thesis and paper. So I have prepared 3-4 lectures or the video presentations from this paper. Therefore, on the main title I have mentioned the papers. I recommend that this paper must be studied by the students who intend to do the MS or PhD. So this is not a purely theoretical paper. This is based on the actual happening and the breakdown in the New York State long time ago. I think 2 decades at least ago, and then this study or research was carried out. So I have taken the help from this. Now coming to this topic, that power swing blocking. So by now you have read the power swing, what is power swing, what is the stable power swing, what is unstable power swing. There is a lecture from me with the heading power swing stable dash unstable. So you can also go through that so that you understand what is the power stability, transient power stability, and what is the power swinging, and what is the bad effect of the power swinging. It results in the inadvertent, unwanted maloperation of the relays. Distance relays operates because it sees power swing as a fault at that point because it measures the voltage and current. So there are various methods which are in use in the power system, and I have mentioned in my other lectures in the classroom. But in this lecture, the mostly I have given the written information, and I have picked up the information from this wonderful, well-researched paper which is mentioned here. So please go through that paper as well, because I cannot take everything from there. I have taken some points and then mentioned here, and all the explanation are of my own, from my own experience, and they are also mentioned in my classroom lectures with the hand drawn diagram and the interactive sessions with the student. तो अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो प्रॉब्लम आते हैं इसकी वजह से एक तो ये आता है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने उस लेक्चर में कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, क्योंकि जब ये इनके दरमियान में एंगल बढ़ता चला जाता है तो उनको सिंक्रोनिज्म में रखना मुश्किल होता है, और अगर उस वक्त कोई फॉल्ट आए और वो जो देखें मैक्सिमम डिग्री 180 डिग्री लिखा है आउट ऑफ फेज ड्यूरिंग इंटरप्शन, अगर वोल्टेजेस हो जाएँ वो डेल्टा 180 डिग्री हो जाए तो उस वक्त फिर आपका ब्रेकर जो है वो डैमेज भी हो सकता है. वो डिज़ाइन नहीं होता कि दोनों वोल्टेज 180 पे हों, तो इसका मतलब है कि दोनों का अगर आप देखें तो असरात कंबाइंड जो है वो बड़े ख़तरनाक होते हैं. और ये आप याद रखें कि TRV जो है उसका राइज़ जो है वो बहुत तेज़ी से होता है और बड़ा हेवीली होता है, तो उसकी वजह से ब्रेकर ये
डैमेज हो सकता है अगर फॉल्ट आ जाए और ब्रेक हो, ओपन हो। तो आपको याद रखना पहला ये क्या कि टीआरवी जो है उसकी वजह से ब्रेकर का फेलियर हो सकता है। दूसरा आपको याद रखना है कि आइसोलेटिंग लोड एंड जनरेशन। अब जब अनस्टेबल पावर स्विंग होता है, मैंने उसमें पूरा डायग्राम बना करके कर्व दिखाया है कि स्टेबल पावर स्विंग क्या है, अनस्टेबल पावर स्विंग क्या है। अनस्टेबल पावर स्विंग में लोड पॉइंट आपका वापस चला जाके एक बार सेट हो जाता है राइट हैंड साइड पे, जबकि अगर अनस्टेबल पावर स्विंग है तो लोड जो पॉइंट है वो अंदर जाता है, दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है और ट्रिपिंग लाजिम हो जाती है। तो ऐसे केस में भी ये ज़रूरी होता है कि एक सर्टेन जगह पे जा कर के आप सिस्टम को आइसोलेट कर दें, जनरेशन को अलग अलग कर दें और आइलैंडिंग कर दें। आइलैंडिंग पे अलग लेक्चर है, मैंने बड़े आसान तरीके से आइलैंडिंग समझाई है कि आइलैंडिंग डेलिबरेटली आप कुछ जगहों पे ट्रिपिंग कर दें ताकि सिस्टम पूरा कोलैप्स ना हो। आप देखते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको बचने के लिए अगर ऐसा कोई सिस्टम हो कि जिस वक्त के लगे कि सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया है कहीं वावडा में दूर लाइनों की वजह से, तो ऐसे इंस्टेंट पे वावडा और केसी सिस्टम को अलग कर दिया जाए किसी पॉइंट पे, तो कोई सिस्टम तो बच जाएगा ना। इसी तरह विद इन द एनटीडीसी सिस्टम वो भी सिस्टम स्टडीज से पता करके वो भी मुख्तलिफ जगहों पे ट्रिपिंग करा दी जाए ताकि जो है वो सिस्टम गुड्डू थर्मल अलग चलने लगे, मंगला अलग चले, तरबेला अलग चले, इस तरह अलग अलग कर दिया जाए। फिर इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है क्योंकि ये जो आपका आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जनरेटर जाते हैं इसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेसेस ज़ाहिर होते हैं ना। जब रोटर देखे ना वो बिल्कुल ऐसा हाथी की तरह झूम रहा है, एक्सेलरेट डिसेलरेट एक्सेलरेट डिसेलरेट, तो उसमें क्या होगा कि जाहिर है कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी तो आएंगे ना, तो ये भी बहुत बड़ा एक नुकसान होता है इक्विपमेंट को। टरबाइन को नुकसान हो सकता है, अल्टरनेटर के रोटर को नुकसान हो सकता है, यानी कि फिजिकल डैमेज हो सकता है। फिर कैस्केडिंग ऑफ ट्रिपिंग हो सकती है, यानी कि ऐसी लाइनें ट्रिप हो गई गलत जो कि लोड इंक्रोचमेंट की वजह से, पावर स्विंग के इंक्रोचमेंट इनटू द रिले सेटिंग कि वो गलत टाई लाइन ट्रिप हो गई, उससे कोई ऑटो ट्रांसफार्मर उस पर लगा था वो भी ट्रिप हो गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि फिर धड़ाधड़ लाइन से सब्सिक्वेंट रिले ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटर भी ट्रिप होना शुरू करते हैं। उसको कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा फॉलो अप करे तो कैस्केडिंग है, यानी कि वो मुसलसल तरतीब से, तरतीब तो कहना गलत है, मतलब मुसलसल एक के बाद दिख रहे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई लाइन निकल गई। आप देखते हैं ना हर वक्त ऑपरेटर चिल्ला रहे होते हैं कि सर अभी तो सही था, अभी फराली लाइन ट्रिप हो गई, अभी सर तो सही था, अभी तो मेरी मशीन ट्रिप हो गई। तो वो सब क्या है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ये अनवांटेड जो कैस्केडिंग ट्रिपिंग जनरेटिंग होती है, ये सब के सब नतायज हैं किसके, ये सब के सब नतायज हैं पावर स्विंग के। तो नटशेल में क्या निकला कि पावर स्विंग जो है वो एक बड़ी बैड इफेक्ट डालती है पावर सिस्टम पे। उसकी वजह से जो है वो टोटल सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। उसकी वजह से आइलैंडिंग की आउट ऑफ स्ट्रिप टिपिंग कराई जाए तो वो बेहतर है। अलग अलग हमने लेक्चर उसके ऊपर भी जारी किए हैं। इसी तरह मैकेनिकल डैमेज होने का ख़तरा होता है क्योंकि रोटर जो है वो कभी तेज़ हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी एक्सेलरेट कभी डिसेलरेट, उसको फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह इनपुट साइड पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं क्यों कि पावर स्विंग हो रही है। और पावर स्विंग क्यों हो रही है कि सिस्टम में कहीं फॉल्ट आया है जो जब तक क्लियर नहीं हुआ उस वक्त तक रोटर एंगल जो है वो शिफ्ट होता रहता है और वो इक्विलिब्रियम में नहीं आया। तो इसका मतलब ये होगा, यानी पी एम इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रिकल नहीं हुआ। वो आप मेरे ग्राफ वाले लेक्चर ज़रूर देखें जो वाइट बोर्ड पे मैंने किए हैं, उस पर मैंने सारी चीज़ें बहुत ही तफसील से बताई हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए जारी कर रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ ज़्यादा होगा और उस लिखे हुए को अगर आप उससे मिलाएंगे जो मैंने वाइट बोर्ड पे डायग्राम बना करके इंटरेक्टिवली समझाने की कोशिश की है, तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो दूसरों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन करें कोई भी इतने व्यूज़ नहीं आने। आप देख लें जा कर के नेट पे, जिन्होंने 5-5 साल से नेट पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये वीडियो डाले हुए हैं, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, इंडिया इवन बेइंतहा डाले हुए हैं। अब देखें उनके व्यूज़ जो है 1000-2000 ही हैं, लेकिन बेहतरीन लेक्चर्स हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि मेरे ही कोई बेहतरीन है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे कोई ये व्यूज़ की वजह से मेरी इनकम नहीं होनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथियों का, आपके बेटे बच्चे भाई दोस्तों का फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सबको बांटें। इल्म को बांटने से आपका फ़ायदा होगा और आपको रिस्क में बहुतात होगी, आपको जॉब मिलेगी।